Today we will take the topic that is soil erosion. As you are aware about what is soil, what is its composition, and what is its profile. So you know that soil is the uppermost layer of the Earth's crust. This soil erosion, it is the removal of that layer of the Earth's surface. Simply we can say it is the removal of the top layer of soil. The removal of top layer of soil. In other words, we can define this soil erosion as the natural process, the natural process of removal, or we can say the detachment of soil materials and disturbances in soil texture. सॉइल टेक्सचर है उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है इस सॉइल इरोजन की वजह से टेक्सचर यू नो दैट इज द डिफरेंट साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स दिस सॉइल इरोजन इट इज इंक्रीजिंग सॉइल इरोजन it is increasing due to the agricultural developments increasing due to agricultural developments जो agricultural developments जो वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव लैंड्स जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द agricultural lands and also that land is converted into the constructive lands constructive lands we can say that these natural vegetative lands they are used for the agricultural purpose they are used for the constructive purposes and the main reason for this soil erosion that is the deforestation की एक main reason है इस soil erosion के लिए इस deforestation से बहुत ज़्यादा soil erosion होता है has led to the massive soil erosion this soil erosion there are the other agents we can say for the soil erosion those agents are water and wind these two are the main agents for this soil erosion we will firstly take this water agent firstly the water agent which is responsible for the soil erosion when the erosion occurs due to the water that time it is called the water erosion so this water erosion it results from the removal of soil materials removal of soil materials by flowing water by flowing water जब water flow करेगा on the surface of the soil the soil materials they are removed and then are suspended into the runoff water उसी water के साथ वो suspend होके वो runoff हो जाता है वो soil materials and this water erosion it occurs in many ways for example लेंगे sheet erosion water erosion बहुत तरीकों से होता है firstly it is the sheet erosion here in this sheet erosion the soil materials they are removed by flowing water soil materials are removed by flowing water but without developing channels यहाँ पर देखना है कि जो sheet erosion है without developing channels यहाँ पर देखा कि जो चैनल्स है वो डेवलप नहीं होंगी क्योंकि शीट इरोजन में भी सॉइल मटेरियल जो है वो रिमूव होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस वाटर और जो चैनल्स है यहाँ पर डेवलपिंग चैनल्स या फिर जो नालियाँ बनती है जहाँ से वो सॉइल इरोड होता है वो नालियाँ नहीं बनेगी वो चैनल्स डेवलप नहीं होगी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल जो ये वाटर इरोजन होता है ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से चैनल्स डेवलप होंगे अगर कम होगा
तो चैनल्स डेवलप नहीं होगी। हियर शीट इरोजन में चैनल्स डेवलप नहीं होगी, इसमें चैनल्स डेवलप नहीं होते हैं। सॉइल इरोजन होता है बट विदाउट डेवलपिंग चैनल्स, दैट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल जो है वो लो है। हियर द रेनफॉल इज लो। सेकंडली हम लेंगे हियर इज द गिली इरोजन। Hilly erosion. In this type of water erosion, soil materials are removed by flowing water. यहाँ पर भी यूज हो रहा है वाटर का, soil materials रिमूव हो रहे हैं but by developing channels. यहाँ पर channels डेवलप हो रहे हैं by developing channels. इसका मतलब गिली इरोजन में यहाँ पर भी रिमूव होता है soil materials by the presence of this water और by flowing water but by developing channels. चैनल जो बनती है इसका मतलब है यहाँ पर रेनफॉल जो है वो हैवी होगा। Here the rainfall is heavy. इसीलिए चैनल्स बनती है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला जो वाटर इरोजन है ये डिपेंड करता है रेनफॉल पे, उसी हिसाब से इरोजन होता है। अगर रेनफॉल कम है दैट मींस शीट इरोजन हो रहा है, चैनल्स डेवलप नहीं हो रही है। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो गिली इरोजन हो रहा है, यहाँ पर चैनल्स डेवलप हो रही है। थर्डली हम लेंगे इट इज रिल इरोजन। रिल इरोजन जो है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द शीट इरोजन एंड दिस गिली इरोजन, ये इनके दरमियान में है। दैट मीन्स यहाँ पर चैनल्स डेवलप नहीं हो रहे, इसमें हो रहे हैं चैनल्स डेवलप बट उतने भी नहीं हो रहे जितना कि गिली इरोजन हो रहा है। गिली इरोजन में ज्यादा चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, उसमें हैवी रेनफॉल है, यहाँ पर लो रेनफॉल है, तो यहाँ पर जो चैनल्स डेवलप हो रहे हैं बट द रेनफॉल इज मॉडरेट, मॉडरेट रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो मॉडरेट है, उसी हिसाब से चैनल्स बनती है, बस ज्यादा भी नहीं जितना कि गिली इरोजन में बन रही थी। तो फोर्थली हम लेंगे इट इज स्ट्रीम और रिवर बैंक इरोजन। रिवर बैंक इरोजन यहाँ हमें देखना है कि जो स्ट्रीम्स या रिवर्स है दीज वाटर बॉडी जो है यहाँ पर डिपेंड करता है जितना वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज होगा उसी हिसाब से इरोजन होगा। इफ द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सच वाटर बॉडीज इंक्रीजेस then the soil erosion, the soil material they are eroded on the banks of such water bodies. ये डिपेंड करता है इस वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर हैवी रेनफॉल होगा तो इस में जो वॉल्यूम है वाटर का वाटर बॉडीज में हैवी रेनफॉल, तो ये डिपेंड करता है। रेनफॉल ज्यादा होगा तो वॉल्यूम इन वाटर बॉडीज में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सॉइल मटेरियल्स है वो इरोड हो जाएंगे ऑन द बैंक्स ऑफ सच वाटर बॉडीज। नेक्स्ट हम लेंगे इट इज स्लिप इरोजन। slip erosion. Here in this slip erosion, the water saturated soil जो है they are moving down in slopes due to the gravity. यहाँ पर जो soils है जो water से heavy हो जाते हैं और उस वजह से वो because of the gravity वो नीचे आ जाते हैं और जिससे कि soil material जो है soil erosion होता है वहाँ पे। So this is the first agent, that is the water which is responsible for the soil erosion. Next agent हम लेंगे that is the wind. Second agent that is wind. It always when the erosion occurs due to the presence of wind, that time it is called the wind erosion. If this wind erosion it occurs in such areas where there is a high prevailing winds. उन एरियाज में होगा जहाँ पर हाई प्रिवेलिंग विंड्स होगी, जहाँ पर ज्यादा विंड्स का दबाव रहता है, हाई प्रिवेलिंग विंड्स। एंड आल्सो इन सच एरियाज वेयर देयर इज अ लो एनुअल रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। एंड आल्सो दिस wind erosion occurs in such areas where there is a sandy soil, sandy soil. तो उन इन एरियाज में ज्यादा रहता है विंड इरोजन का खतरा, जहाँ पर ज्यादा दबाव होगा,
हाई विंड्स होंगे, या जहाँ पर लो रेनफॉल होगा, या जहाँ पर सैंडी सॉइल्स होंगी, वहाँ पर विंड इरोजन ज़्यादा होता है। सैंडी सॉइल्स आपको पता है कि सॉइल्स जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। सैंडी सॉइल्स है, सिल्ट सॉइल्स है, क्ले सॉइल्स है, लोम सॉइल्स है। इनमें से देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा सैंडी सॉइल्स होता है वहाँ पर विंड इरोजन ज़्यादा होता है। दिस विंड इरोजन it occurs in it occurs on smooth surface. Occurs on smooth surface. Smooth surface here means those surfaces, those lands which are without the vegetation cover. जहाँ पर हमने रिमूव किया होगा जो वेजिटेटिव लैंड जो है वहाँ पर हमने वेजिटेशन कवर रिमूव किया है, और वहाँ पर सरफेस है वो स्मूथ बन जाती है, that is naked. And in these smooth surfaces, in these naked surfaces, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, वहाँ पर वो लूज है क्योंकि वेजिटेशन कवर है ही नहीं, वहाँ पर प्लांट्स है ही नहीं उस लैंड पे, उस सरफेस पे। तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो लूजली अरेंज रहते हैं, जिस वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स दे आर इजीली मूव विद विंड्स, वो विंड्स के साथ जल्दी से मूव हो जाते हैं। एंड दिस wind erosion, it occurs in different ways. It occurs in different ways, but depends upon the size of the soil particles. Depends upon size of soil particles. ये इस पे डिपेंड करता है कि सॉइल पार्टिकल कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उस पे डिपेंड करता है कि विंड इरोजन किस किस तरीके में होता है। फर्स्टली सस्पेंशन। दिस टाइप ऑफ विंड इरोजन, सस्पेंशन में जो सॉइल मटेरियल्स है दे आर रिमूव्ड, soil particles of less than, जिसका साइज जो होगा दैट इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर इन साइज। सस्पेंशन में हम देखते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन 0.1 मिलीमीटर होगा दे आर रिमूव्ड बाय द winds, वो विंड की वजह से रिमूव होंगे these soil particles into the atmosphere. These soil particles they are removed into the atmosphere ये सॉइल पार्टिकल जो है क्योंकि फाइनर पार्टिकल्स है, these सॉइल पार्टिकल्स आर द फाइनर पार्टिकल्स, इसलिए वो सस्पेंड होते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, but it is not removed, it is suspended. Sorry, these soil particles, these are suspended into the atmosphere and are carried high into the atmosphere. Carried high into the atmosphere. क्योंकि ये ऊंचाई में जाते हैं एटमॉस्फेयर में, क्यों, क्योंकि ये फाइनर पार्टिकल्स हैं, इनका साइज बहुत छोटा रहता है जिस वजह से एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जाते हैं। उसके बाद यही सॉइल पार्टिकल जो है, ये फाइनर पार्टिकल जो है, these finer particles they are returning back to the surface of the soil to the surface of the soil, surface of soil कब, या तो जब विंड सबसाइड होगा, जब विंड रुक जाएगी तब ये सॉइल सरफेस पे आएगी, या बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की वजह से, ड्यू टू रेनफॉल और due to rainfall or when the wind subsides. या तो विंड सबसाइड होगी तभी ये फाइनल पार्टिकल सॉइल सरफेस पे वापस आएंगी, या रेनफॉल की वजह से ये सॉइल पार्टिकल्स फिर से वापस आ जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द
soil. So this is the first type of this wind erosion. Second here is it is saltation. क्योंकि सस्पेंशन में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स दोज आर द फाइनर सॉइल पार्टिकल्स. यहाँ पर सॉल्टेशन में हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है दोज सॉइल पार्टिकल्स of size is 0.1 to 0.05. जो साइज रहता है इस सॉइल पार्टिकल का नॉट 0.05 to 0.5 मिलीमीटर. जो सॉल्टेशन जो नेक्स्ट टाइप है इस विंड इरोजन का, इसमें सॉइल पार्टिकल का जो साइज है दैट इज 0.1 to 0.5 मिलीमीटर इन साइज. तो यही सॉइल पार्टिकल्स जो है दे आर स्लाइडिंग along the surface of the ground. These soil particles are sliding these soil particles they are sliding above 30 centimeters from the surface of the ground. From the surface of the ground. Saltation में जो soil particles है वो slide करेंगे because of this wind, but above this 30 centimeters from the surface of the ground. Ground से वो 30 centimeter ऊंचाई तक वो स्लाइड करेंगे, मूवमेंट करेंगे ये सॉइल पार्टिकल्स जिनका साइज रहेगा 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के दरमियान. So next is it is soil creep. It is soil creep. तो सॉइल क्रीप में हम देखेंगे यहाँ पर जो साइज रहता है सॉइल पार्टिकल का दैट इज 0.5 to 1 मिलीमीटर. जो ये सॉइल पार्टिकल्स है दे आर स्लाइडिंग along the surface of the ground. Along the surface of the ground. यहाँ पर सॉइल क्रीप में जो सॉइल पार्टिकल्स है दे आर स्लाइडिंग along the surface of the ground because of their larger size. इनसे जो सॉल्टेशन में सब्सटेंस में जो सॉइल पार्टिकल्स का साइज है उनसे भी बड़ा है इस सॉइल पार्टिकल का साइज, इसीलिए सॉइल सरफेस के साथ में ही स्लाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉइल क्रीप. ये सरफेस के साथ साथ में ही मूवमेंट करते हैं. Next is the effects of, this is about the causes of the soil erosion. इस वाटर और विंड की वजह से डिफॉरेस्टेशन इससे सॉइल इरोजन होता है. नाउ we will take the effects of this soil erosion. Effects of soil erosion. क्या होता है इस soil erosion से? So there are poor growth in क्रॉप्स है. हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन की वजह से जो इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारी क्रॉप्स पे पड़ रहा है, उसमें पुअर ग्रोथ हो रही है. इस तरह हम देखते हैं जो ग्रास लैंड्स है उसमें भी पुअर ग्रोथ हो रही है. पुअर ग्रोथ इन ग्रास लैंड्स आल्सो एंड आल्सो इन फॉरेस्ट उसमें भी पुअर ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सॉइल इरोजन. सेकेंडली हम देखते हैं कि जो इसका इफेक्ट है दैट इज course of rivers, the other water bodies, course of rivers and other water bodies
that is changed due to the deposition of sediments. अब देखते हैं कि जो रिवर्स किया जो वाटर बॉडीज की जो डेप्थ है दैट इज चेंज वो चेंज हो रही है क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का जो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड वेरियस वाटर बॉडीज उस वजह से जो इनकी डेप्थ है दैट इज चेंज वो चेंज हो जाएगी ओब्वियसली क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इफेक्ट है सॉइल इरोजन का दैट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द लैंड टू वाटर बॉडीज लैंड टू वाटर बॉडीज। हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट थे इस सॉइल में वो रिमूव हो गए बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन और रिमूव लैंड से वो कहाँ गए टू द डिफरेंट वाटर bodies and because of this soil erosion these water bodies get polluted water bodies get polluted and these loss of nutrients जो land से water body में गए and this results in to the pollution of water है ना water body जो है वो pollute इसी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फाइनल पार्टिकल्स हैं तो फाइनल सॉइल पार्टिकल्स ठीक है फाइनल soil particles they are continuously because of this wind they are suspended with the atmosphere और जिस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है that is polluted atmosphere pollution or we can say the air pollution so इस particles की वजह से जो continuously because of their final size because of their साइज जो इनका छोटा रहता है जिस वजह से वो कंटिन्यूसली जो बहुत देर तक वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और जिस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड रहता है and because of it is present into the atmosphere various chemical processes that is also gets disturbed because of this soil particles तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो सॉइल इरोजन है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या क्या causes है इस soil erosion के this is all about the soil erosion